Okay, so now we'll continue. So I think we have completed this vector differentiation. Okay. So after that, our next topic is divergence, gradient, and curl of a vector. Okay. So for that, let me start from this. Okay. So I already explained this part. Still, I will revise one more time. Is this visible? Visible proper? सो नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज अ डेल. ओके, जैसे आपको पता है कि कैपिटल डी इज योर डेरिवेटिव टर्म, है ना, विच इज डिफाइंड एज डी बाई डी एक्स. इन अ सिमिलर वे, नाउ इन वेक्टर वी डिफाइन अ डेल ऑपरेटर which is also work as a derivative operator, but in terms of vector, which is I bar dabba by dabba x plus j bar dabba by plus k bar into dabba z. Okay, so now we have a del operator del, correct? And yeah, just let me take a blank screen. So now we have an operator del, which is a vector, which is I into dabba by dabba x plus j into dabba by dabba y plus k into dabba by dabba z, correct? So it's a vector. And now what are the possible operations that you can perform on this del? Okay, so to perform to perform all possible operation, we need to take one more vector. So let us consider a vector function. It's a function, मतलब यहाँ पे जो coefficient आने वाले, that coefficient may be constant, that coefficient may be variable. That is the meaning of function. क्योंकि function can take constant value also, and function can take variable value also. So here my f bar is something like f1 into I bar plus f2 into j bar and plus f3 into k bar. So now you will have these two vectors. One is del, second is f bar. So between two vector, you can perform their dot product also, and you can perform their cross product also. Okay. So when you perform a dot product, that quantity it's called as divergence of vector. This is called as divergence of vector. When you perform a cross product, then it is called curl of vector. Okay, so this is all about for any other vector f bar. This is for any other vector f bar. Now instead of vector, if I take a scalar, scalar का मतलब क्या है? Just take a function without I bar, j bar, k bar. So it's a function of say x, y, z. So instead of this f bar, if I take any scalar function, then you can multiply this vector, this del vector by phi. That is denoted by del phi. Okay, and this gives you gradient of phi or gradient of scalar function. ठीक है, now one by one just tell me definition of this. Anyone? What is definition of del f bar? Tell me quickly. Yes, del f bar means what? How you calculate this value? You have value of del also, you have value of f bar also. What is del f bar? Yes, anyone? What is value of del dot? सर डॉट प्रोडक्ट रहता है क्या सर? हाँ, डॉट प्रोडक्ट लेना है. तो स्केलर आएगा सर वो. हाँ, but what is that value? f1 dabba I bar dabba n. f1 Plus- dabba f1 into dx. So this with this plus डेल डॉट में पहले डेल लेना है. ये मैं कोई रैंडम नहीं ले रहा. डेल डॉट एफ में पहले डेल डेल के फंक्शन लेने, फिर उसके बाद ही मुझे एफ के लेने. ठीक है, सो दैट्स वाई इट बिकम डैबा एफ वन अपॉन डैबा एक्स, डैबा एफ टू अपॉन डैबा वाई प्लस डैबा एफ थ्री अपॉन डैबा जेड. दिस इज योर स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, नेक्स्ट टेल बी कर्ल. How you calculate curl of del cross f bar? Tell me that value. Yes, बोलो. What is curl? So cross product आप कैसे calculate करते हो? How you find a cross product? Determinant से. So in that first row, I bar, j bar, k bar. In second row, consider the del, which is dabba by dabba x, dabba by dabba y, dabba by dabba z, and in third row consider the coefficient of f bar, which is f1, f2 and f3. And we know that this is a vector, therefore it's a vector quantity. ठीक है, now last del phi.
what is value of this? What is value of this? Yes, 5 से बस 5 से बस आपको डेल को मल्टीप्लाई करना है, सो दैट बिकम आई बार डेबा 5 बाय डेबा एक्स प्लस जे बार डेबा 5 बाय डेबा वाई प्लस के बार डेबा 5 बाय डेबा जेड, एंड इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, एंड एक और रिजल्ट मैंने आपको इसके आगे एक्सप्लेन किया था. ठीक है, व्हाट इज दैट रिजल्ट? जो डेल फाई होता है, दैट इज नथिंग बट ग्रेडियंट ऑफ स्केलर. इट एक्चुअली गिव्स यू अ नॉर्मल वेक्टर टू अ सरफेस फाई. दिस इज very very important. So this del phi gives you normal vector to surface phi. ठीक है, this is the one, this is, you can say, geometrical interpretation of this del phi. So this del phi gives you normal vector to a surface phi. इसमें क्या रिजल्ट है कर्ल ऑफ वेक्टर में? if this quantity is 0, if del cross f bar is equal to 0, then that vector field is called as irrotational vector field. Irrotational vector field. ठीक है, and if del dot f bar is 0, then that vector field is called as solenoidal vector field. This you can say physical significance of this divergence and curl of vector. Okay, so we'll see all this part one by one. इतना ही आपको इसमें लर्न करना है, then we'll directly jump to the MCQ. इतना ही इसमें प्रिपेयर करना है. डेल की डेफिनेशन क्या है, डेल डॉट एफ बार क्या है, डेल क्रॉस एफ बार क्या है, डेल फाई क्या है, एंड व्हाट आर देयर डेफिनेशन, एंड दिस आर द रिजल्ट्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद दिस टॉपिक्स. ठीक है, ओके, सो विल गो वन बाय वन. क्विकली मैं आपको दिखाता हूँ. सो दिस इज द so this is your first point, that del phi, so proof is there. So this del phi actually gives you a normal to the surface phi. Okay, at particular अगर आप एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कैलकुलेट करते हो, so it actually gives you a normal vector at point P. P पॉइंट पे कैलकुलेट करते हो, so it gives you normal vector at point P. ठीक है, this is one. हाँ, now these are the results that you can apply for del. But here these all results are only for scalar. यहाँ पे मैं जो डेल ऑपरेट कर रहा हूँ, दैट डेल हियर आई ऑपरेटेड ऑन स्केलर ओनली. तो फर्स्ट रिजल्ट क्या है, व्हाट इज डेल ऑफ फाई प्लस साई? इफ फाई इज अ स्केलर, साई इज अ स्केलर, सो इट इज एक्चुअली डेल फाई प्लस डेल साई. ये सब कुछ स्केलर के लिए चल रहा है, नॉट फॉर अ वेक्टर. स्केलर मतलब विच इज फ्री फ्रॉम आई बार जे बार के बार. नेक्स्ट इज व्हाट इज वैल्यू ऑफ डेल ऑफ फाई साई? ये यू एंड वी में मैंने लिखा है, बट इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन रिमेंबर इन टर्म्स ऑफ फाई एंड साई. सो दिस इज first derivative of second, or del psi of this, and psi into del phi. ठीक है, similar to our regular derivative. Next is derivative of u by v. ठीक है, so v square v into del phi minus u into. ठीक है, next del of constant into phi, so it is actually k into del phi. You can take constant outside to the derivative. And ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, दिस इज डेल ऑफ सम फंक्शन, डेल ऑफ एफ ऑफ आर. दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिजल्ट. सो व्हाट इज दिस रिजल्ट? डेल ऑफ एफ ऑफ आर, डेल ऑफ सम फंक्शन ऑफ आर, डेल ऑफ सम फंक्शन ऑफ आर. एंड व्हाट इज दैट रिजल्ट? इट इज एक्चुअली एफ डैश ऑफ आर इनटू डेल ऑफ आर. ठीक है, एफ डैश ऑफ आर इनटू डेल ऑफ आर. ठीक है, अब ये कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ. दैट थिंग इज आल्सो देयर, मे बी यही पे होगा. ओके, सो देखो ये रिजल्ट ही यहाँ पे, डेल ऑफ एफ ऑफ आर इज एक्चुअली एफ डैश ऑफ आर इंटू आर बार अपॉन आर. तो ये जो डेल ऑफ आर की वैल्यू है, इसको भी हमने कैलकुलेट करके ये एक फॉर्मूला जनरेट किया. नाउ ये क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, एंड एक्चुअली आई नीड दिस फॉर्मूला व्हाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑन दी व्हाइल सॉल्विंग एमसीक्यूज ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. ये एक आपका फॉर्मूला ही है, डेल ऑफ एफ ऑफ आर इज इक्वल टू द डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाय आर बार डिवाइडेड बाय आर. ओके, कैसे मिलता है मैं आपको दिखाता हूँ. लेट्स ट्राई टू प्रूव दिस. ठीक है, सो व्हाट इज डेल ऑफ एफ ऑफ आर बाय दिस रिजल्ट? सो इट इज एफ डैश ऑफ आर इनटू डेल आर. तो आपको अभी बस कैलकुलेट क्या करना है, ओके हाँ, डेल आर आपको कैलकुलेट करना है, करेक्ट. बट व्हाट इज डेल?
What is del? Del is what? I bar dabba by dabba x plus j bar dabba by dabba y plus k bar dabba by dabba z. What is r? Anyone? What is r? r की वैल्यू क्या है? हाँ? अरे what is value of r? आप मेरे साथ भी नहीं. रिजल्ट आपके पास क्या है कि एक रिजल्ट Mod आपके of पास है डेल ऑफ एफ ऑफ यू इज नथिंग बट एफ डैश ऑफ यू इंटू डेल ऑफ यू. ओके, मुझे यहाँ से एक फॉर्मूला प्रूव करना है विच इज डेल ऑफ एफ ऑफ आर इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ आर इंटू आर बार अपॉन आर. दिस इज वन ऑफ द फेमस रिजल्ट. ठीक है, अब ये प्रूव करने के लिए आई नो द वैल्यू ऑफ आर बार. इट्स अ पोजिशन वेक्टर, इन जनरल पोजिशन वेक्टर, एक्स इंटू आई बार, वाई इंटू जे बार, जेड इंटू के बार. नाउ माई क्वेश्चन इज व्हाट इज आर हियर? डेल ऑफ आर मैंने लिखा है यहाँ पे. ओके, डेल ऑफ आर, तो डेल की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की, बट व्हाट इज माई आर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर दैट आई वांट? व्हाट इज वैल्यू ऑफ आर? यस, व्हाट इज वैल्यू ऑफ? the root x square plus Very good. z square. आपको ये मैंने इनिशियली बोला था कि अगर मैं ए बार को वेक्टर बोलता हूं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो ए आएगा दैट इज योर मॉड्यूलस. इट इज नथिंग बट मॉड्यूलस ऑफ ए बार. ठीक है, सो रिमेंबर दिस नोटेशंस. सो इट इज एक्चुअली अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ठीक है, या सो यू कैन सी दैट पार्ट हियर. आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ये अंदर मल्टीप्लाई होने वाला है. यहाँ पे देखो डेल आर बाय डबा एक्स, डबा आर बाय डबा वाई, डबा आर बाय डबा जेड. तो पहले ये कैलकुलेट कर लेते, डबा आर बाय डबा एक्स है ना. सो डबा आर बाय डबा एक्स इज डबा बाय डबा एक्स ऑफ दिस. इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सो इट्स अ रूट एक्स फंक्शन whose डेरिवेटिव इज 1/2 रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट टर्म विच इज 2x. 2 कैंसिल हो जाएगा. You will get x upon and under root of x square plus y square plus z square. But the value of under root of x square plus y square plus z square is r. So basically, dabba r by dabba x is x upon r. You don't need to prepare this proof. ये proof आपको नहीं आने वाला कहीं पे भी. So that value is x by r. Similarly, can anyone tell me what is value of dabba r by dabba y? हाँ, अगर आप इसको y से डिफरेंशिएट करते हो इस फंक्शन को, so what is that value? Yes? Yes? What is that value? अरे इसको सर y upon root of x square plus y square plus z square. Very good. Y upon under root of x square plus y square plus z square. But under root of x square plus y square plus z square is again r. So this value is y by r. This value is z by r. Okay? So if I put all these values here, okay, next is y by r, z is y by r. Next, so if I put all these values here, you will get x upon r plus y upon r plus z by r. यहाँ से r कॉमन आ जाएगा तो नीचे आपको r मिलता है, ऊपर क्या मिलेगा? x इंटू आई बार, y इंटू जे बार, z इंटू के बार. दैट इज नथिंग बट r बार. तो प्रूफ आपको प्रिपेयर करना तो आप करो, अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली स्किप दिस प्रूफ. बट एट देन आपको क्या याद रखना है इसके आगे? डेल ऑफ एफ ऑफ आर इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ आर इंटू आर बार अपॉन आर. दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिजल्ट. इसके आगे मैं एक और रिजल्ट कैलकुलेट करने वाला हूँ. दैट इज डेल ऑफ एफ डैश ऑफ नहीं, ठीक है आई थिंक मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है कि वो एफ डैश का ही है, शायद फर्स्ट डेरिवेटिव का ही है. ठीक है, आगे है वो वेक्टर आइडेंटिटी, लास्ट टॉपिक है, विल सी इन दैट पार्ट. एफ डैश ऑफ आर का होगा. ठीक है, सो दैट आल्सो वी नीड टू कैलकुलेट लेटर ऑन. ओके, अभी इस टॉपिक में नहीं चाहिए. ठीक है, एंड आफ्टर दैट द एग्जांपल्स आर देयर. ठीक है, ओके, कम टू दी प्रॉब्लम्स नाउ. ये और दो डेफिनेशन है. नाउ ऑर्थोगोनल सरफेसेस. ठीक है, सो जस्ट लेट मी गिव द डेफिनेशन, दिस टू डेफिनेशन, देन वी कैन डायरेक्टली मूव टू द एमसीक्यूज. ओके, ऑर्थोगोनल सरफेसेस. So two surfaces are said to be intersect orthogonally if the normals to these surfaces are intersect at right angle triangle. Simply क्या है? When you say that two surfaces are orthogonal, if the normals at the point of contact or at the point of intersection, if the normals to both these surfaces at the point of intersection is at 90 degree. Okay, or simply if the angle between these two normals is 90 degree, then we call that these two surfaces to be
दिस टू सर्फेसेस एज ऑर्थोगोनल सर्फेसेस. ठीक है. नेक्स्ट इज परपेंडिकुलर वेक्टर. ये रिजल्ट आपको मैंने पहले बोला है. इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0. इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज 0. दैट द बेसिक थिंग्स रिगार्डिंग द वेक्टर. ओके, नाउ कम टू द MCQs. ओके, ये सारी चीजें आगे रिपीट होगी. वन बाय वन आई वांट आंसर फ्रॉम योर साइड. ठीक है, जितना अभी तक हमने देखा है उसी पार्ट पे सारे MCQs है. ओके, क्विक आंसर चाहिए तो आप चाहो तो एक पेज पेन लेके भी बैठो. ओके, a vector differential operator del is defined as, tell me quickly. Other students please be focus here. यही आपका प्रिपरेशन है. Vector differential operator del is defined as, which option is correct? A. I bar dabba by dabba x plus j bar dabba by dabba y plus k bar dabba by dabba z. Next, gradient of scalar point function. It is actually a del phi. How it is defined? Which option is correct? Which option is correct? D. D. Okay, dabba phi by dabba x I bar. अब ये डायरेक्टली आप याद रखो क्योंकि आगे यूज करना है आपको ये पार्ट. सॉरी, dabba phi dabba x I bar dabba phi by dabba y, मतलब phi का विद रिस्पेक्ट टू x I bar, phi विद रिस्पेक्ट टू y j bar, phi विद रिस्पेक्ट टू z k bar. ओके, नाउ फॉर अ लेवल सरफेस ये सिंपली फॉर अ स्केलर पॉइंट फंक्शन. ठीक है, ग्रेड फाई रिप्रेजेंट. क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द व्हाट ग्रेड फाई एक्चुअली रिप्रेजेंट? यस, C. सी. Normal vector. इट्स अ नॉर्मल वेक्टर. ठीक है, ये एक रिजल्ट है. डेरिवेटिव ऑफ यूवी फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. ये भी आपका रेगुलर फॉर्मूला है. साई स्क्वायर साई इंटू डेल फाई माइनस साई इंटू डेल फाई, लाइक दैट. ठीक है. ओके, सॉरी ये नहीं है, ये करें. ओके, ऑप्शन आप देखो अगर कहीं मिस्टेक हो रही तो. साई स्क्वायर साई इंटू डेल फाई माइनस फाई इंटू डेल साई. ठीक है. ओके, नेक्स्ट, एफ बार एक वेक्टर दिया है, आपको लिखना है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर, मतलब डेल डॉट एफ बार की वैल्यू आपको चाहिए. सो व्हाट इज दैट? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल डॉट एफ बार? यस, व्हाट इज डेल डॉट एफ बार? A. ए. डॉट प्रोडक्ट है तो इसका आंसर स्केलर होगा. ओके, सो दिस इज नॉट करेक्ट. हाँ, इन दोनों में से ये आपको टिक करना है. ओके, नाउ सोलेनॉइडल एंड इरोटेशनल वेक्टर फील्ड के बारे में आगे भी आने वाला है, एक स्लाइड है उसके ऊपर. सो आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल दैट particular time, but right now you just remember the definition of this solenoidal vector field and irrotational vector field in terms of vector. ठीक है, सोलेनॉइडल वेक्टर फील्ड की डेफिनेशन क्या है? द डॉट प्रोडक्ट 0 एंड इरोटेशनल वेक्टर फील्ड की डेफिनेशन क्या है? द क्रॉस प्रोडक्ट इज 0. ठीक है, तो राइट नाउ जस्ट रिमेंबर दिस डेफिनेशन. इसके ऊपर इन डिटेल में आगे एक स्लाइड है. ओके, ये हमने अभी कैलकुलेट किया था, बट स्टिल इफ यू डोंट नो यू कैन टेल मी वैल्यू ऑफ दिस. बोलो, डेल ऑफ आर. B. डेल ऑफ आर. A. ऑप्शन by R. आर बार ये आपको. option. ओके, फिर भी कैसे आ रहा है मैं आपको दिखाता हूँ. अभी फास्ट अप्रोच से दिखाता हूँ. डेल ऑफ एफ ऑफ आर का ही फॉर्मूला आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो आर के लिए सिंगल. ठीक है, तो फॉर्मूला आपको याद रखना है विच इज एफ डैश ऑफ आर इंटू आर बार अपॉन आर. तो आंसर क्या होगा? एफ डैश ऑफ आर मतलब आर का डेरिवेटिव विच इज 1 इंटू आर बार अपॉन आर. हमने एक्चुअली प्रूफ ही दिया था इसका कि आर बार अपॉन आर कैसे आ रहा है, बट ये भी रिजल्ट आप डायरेक्टली ऐसे यूज कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट. ओके, phi is given, so this is your scalar function. One vector is given. Del phi कैलकुलेट करना है at point 101. Sorry, del phi at point 101 ये परपेंडिकुलर है टू दी वेक्टर b बार. देन यम इज ओके. तो पहले आप del phi तो कैलकुलेट करो. फर्स्ट टेल मी व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ del phi. उसके आगे फिर जाते हैं. del phi की डेफिनेशन क्या है? I phi x प्लस j phi y plus k phi z. So which is equal to, so differentiate this with respect to x. So I into 2mx plus j into with respect to y is 1 and k into with respect to z is 1. Okay, so this is the value of del phi, and now we have to calculate this del phi at point 101. So calculate at point 101. So what is this value?
So it is just a 2m I bar plus j bar plus k bar. And now this vector is perpendicular to the vector b bar, which is equal to 2i bar plus 3j bar minus k bar. So what that implies? Anyone? What that implies? इसका मीनिंग क्या है? हाँ, दिस टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर मीन्स व्हाट? b1 है ना, परपेंडिकुलर टू b बार. यहां से आपको m कैलकुलेट करना है. दिस टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर मीन्स व्हाट? Dot product is 0. Dot product is 0. So del phi at 1 0 1 dot product with b bar is 0. So that implies dot product आप कैसे लेते हो? I का कोएफिशिएंट 2m, यहाँ पे I का कोएफिशिएंट इज 2 प्लस j का कोएफिशिएंट इज 1, यहाँ पे j का कोएफिशिएंट इज 3 प्लस यहाँ पे k का कोएफिशिएंट इज 1, यहाँ पे k का कोएफिशिएंट -1 which is equal to 0. So what is the value of m? M is what? Minus 1 plus 3 is plus 2. Yes? So which option is correct? यहाँ पे साइन मिस्टेक है क्या कुछ? तो करेक्ट किया है ना? Because it gives me 4m plus 2 is equal to 0. So I think minus 1/2 is the correct answer. Am I correct or not? Yes, sir. Minus 1/2. So you have to change here this sign, and option C is correct. Okay, so minus 1/2 is your answer. Okay, come to next. A divergence of this vector आपको at point 1 1 1 कैलकुलेट करना है. So divergence means del dot f bar. So what is definition of del dot f bar? Anyone? What is definition of del dot f bar? This is f1, this is f2, this is f3. Yes. क्या definition? Dabba f1 by dabba x plus dabba f2 by dabba y plus dabba f3 by dabba z. So which is equal to f1 with respect to x is 3z, f2 with respect to y is 2x, f3 with respect to z is minus 2yz. Now just put or just calculate this value at 1 1 1. So which is equal to so what is that answer? 3 plus 2 minus 2. So which option is correct? 3. ठीक है. Come to next. A vector field is solenoidal, then value of A is okay. So V bar is solenoidal means what? Anyone? V bar is dot product 0. field means what? बोलो बोलो. V bar is a solenoidal vector field means what? क्या थी definition? Dot product. So del dot V bar is 0. ठीक है, del dot V bar is 0. Yes. What is value of del dot V bar? Now I want answer from you only. What is value of del dot V bar? बोलो. It's a trivial questions. इन दोनों del के साथ इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है? Yes. क्या लिखना है यहाँ पे? अरे डेल की डेफिनेशन क्या है? आई बार डैबा बाय डैबा एक्स. ये लिखने की जरूरत नहीं है एक्चुअली. डैबा बाय डैबा वाई, के बार डैबा बाय डैबा जेड डॉट विद -2 एक्स प्लस 3y. ओके विल चेक. एक्स प्लस 3y प्लस वाई माइनस 2z जे प्लस एक्स प्लस ए जेड के. अदर स्टूडेंट इसके आगे क्या लिखना होगा? व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस टू? व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस? 0. डैबा बाय डैबा एक्स ऑफ फर्स्ट. ये याद रखो डायरेक्टली. डेल डॉट एफ बार मीन्स व्हाट? डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू एक्स,
सेकंड का विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड थर्ड का विद रिस्पेक्ट टू जेड, ऐसे ही आप याद रखो। तो फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सेकंड का विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड थर्ड का विद रिस्पेक्ट टू जेड। दैट इंप्लाइज विद रिस्पेक्ट टू एक्स फर्स्ट का इज 1, with respect to x y का is again 1 and with respect to z is a which is equal to 0 and that implies a is equal to -2। तो इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ से लिखो आप। फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू x ये स्टेप चाहिए डायरेक्टली, सेकंड का विद रिस्पेक्ट टू y, थर्ड का विद रिस्पेक्ट टू z, यही सब समझ में आ जाता है। ओके नेक्स्ट, अ कर्ल ऑफ दिस वेक्टर मतलब डेल क्रॉस एफ बार। आप मुझे बोलो क्या लिखना है आगे। कर्ल ऑफ दिस वेक्टर del cross f bar, yes it is defined in terms of determinant in first row I bar j bar k bar, second row में dabba by dabba x, dabba by dabba y, dabba by dabba z, third row में the coefficient of f bar which is x square y, x y z and z square y, so equal to, let's do it quickly, I bar with respect to y is just a z square minus with respect to z is xy minus j x 0 minus z 0 plus k bar। आप करो, मैं क्विकली करने वाला हूँ। with respect to x is yz, with respect to y is just x square। now calculate this value at what? 1 0 1 and 2, so which is equal to x is 0, x is 0, z is 2, so 4i, ठीक है, x is 0, y and z का प्रोडक्ट is 2, so 2k bar, ठीक है, so 4i plus 2k bar, this option is correct। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपको आने वाले, यहाँ पे ये चेंज होगा, वेक्टर चेंज होगा, यहाँ पे भी कर्ल ऑफ वेक्टर में ये एफ बार चेंज होगा, पॉइंट चेंज होगा, बट क्वेश्चन का फॉर्मेट यही रहेगा। ओके नेक्स्ट, ओके इफ अ वेक्टर फील्ड इज इरोटेशनल देन वैल्यू ऑफ ए इज, ठीक है, यहाँ पे भी सेम लॉजिक है। अभी जंप करो डायरेक्टली, तो डेल क्रॉस एफ बार इज इक्वल टू आई जे के, ये तो लिखना ही पड़ता है, डाबा बाय डाबा एक्स, डाबा बाय डाबा वाई, डाबा बाय डाबा जेड। मैं यहाँ पे F1 F2 F3 लिखता हूँ, ज़्यादा टाइम जाएगा तीनों को लिखने में, और डायरेक्टली फिर कर लेता हूँ। सो आई बार नेक्स्ट, ओके क्या करना है, जो F3 है, F3 मतलब ये, इसको किससे डिफरेंशिएट करना है, y से, तो क्या मिलेगा -1, ठीक है, नाउ गिव माइनस साइन। जो F2 है उसको आपको z से डिफरेंशिएट करना है, सो F2 z -1, ओके, नाउ गिव माइनस j, या सो जो F3 है उसको x से डिफरेंशिएट करना है, F3 को x माइनस F1 को z a प्लस k, या F2 को x से डिफरेंशिएट करना है, F2 को x से 2 माइनस F1 को y से डिफरेंशिएट करना है, F1 को y से 2 विच इज इक्वल टू 0 एज इट इज अ इरोटेशनल वेक्टर फील्ड। इरोटेशनल वेक्टर फील्ड में क्या होता है, दिस वैल्यू इज 0, ठीक है, इरोटेशनल, so that implies del cross f bar is 0 and that implies this is equal to 0। okay, so this become so it is 0 है ना, 1 minus of minus, so it is 0, it is 0, so a equal to 4, correct, am I correct or not? Yes sir। okay, that implies a equal to 4, क्योंकि ये वैल्यू तभी 0 आएगी जब आपका a equal to 4 होगा, ठीक है, so this option is correct। नेक्स्ट सर ये फिर से एक बार एक्सप्लेन करिए ना। ओके, इज दिस क्लियर, ये समझ में आ गया पहले? हाँ हाँ, अभी मैंने क्या किया है, क्योंकि क्या होता है, आप ये इमेजिन करो, आप ये पेजेस पे लिख रहे हो, अपने पेजेस पे, ठीक है, रफ पेजेस पे, तो यहाँ पे F1 फिर से लिखने में टाइम क्यों वेस्ट करना है, F1 क्योंकि आपके स्क्रीन पे है ना ऑलरेडी, F1 है ये, आप दिस इज योर F1, आप करो अगर आपको वैसे सही लग रहा तो, F2 है या F3 है, तो मैंने उसको वैसे रख दिया, मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन करने वाला। तो आप देखो आई बार
now you have to solve your regular determinant. So I bar as it is, क्या करना है आपको, I bar in bracket this cross with this means what, जो f3 है उसको y से डिफरेंशिएट करना है, तो f3 का y से -1 माइनस जो f2 है उसको z से डिफरेंशिएट करना है, सो f2 with respect to z is again -1. Is this clear now? First term. Yes. नहीं समझ में आ रहा है तो बेटर वे आप यहाँ पे ये वैल्यूज लिखो सारे, यहाँ पे f1 की जगह पे x + 2y + az लिखो, यहाँ पे 2x - 3y + -z लिखो, यहाँ पे 4x - y + 2z लिखो, और यू कैन वर्क ऑन दिस. इतना कुछ टाइम वेस्ट नहीं होगा उसमें. नेक्स्ट क्या किया मैंने, -j, फिर ये फर्स्ट रो कॉलम चला जाएगा. नाउ विद दिस, सो f3 का विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्या है 4. Then this with this, f1 का with respect to z, f1 with respect to z is a. और last term, is this clear now? Yes, sir. Okay. Now tell me next. आपको क्या चाहिए, पहले ये डॉट प्रोडक्ट आपको एक्चुअली कैलकुलेट क्या करना है, u डॉट del, ये कैलकुलेट करके फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. सो फर्स्ट वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ u bar डॉट del. Now you have to tell me this. U bar आपके सामने, del आपको पता है. Tell me this value. Yes. Tell me this value. U bar dot del. अरे आपके सामने u bar है, आपके सामने del है. del is what, I dabba by dabba x plus j dabba by dabba y plus k dabba by dabba z. Now tell me this dot product. मुझे आपसे ये आंसर चाहिए. Yes, tell me u bar dot del. क्या लिखना है मुझे, आगे बोलो. Yes. Anyone can try this. Dabba by dabba x of x square y. Okay, I got one answer. Dabba by dabba x of x square y. उसका आगे का ये होगा y square x cube प्लस dabba by dabba z of Dabba by dabba x of x square z square. ये माइनस ले लेता हूँ, -3x square z square. Any other answer? Any other answer? Sir, x square y dabba by dabba x Okay, I got second answer, x square y plus y square square x cube dabba by dabba y plus ठीक है -3 x square z square dabba by dabba. dabba by dabba. Now tell me which option is correct. फर्स्ट करेक्ट है या सेकंड, आप ही बोलो. इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है? Second. क्योंकि यहाँ पे पहले u बार आ रहा है एंड मैंने आपको उसी टाइम पे बोला था स्टार्टिंग में ही, दिस डॉट प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव. मतलब डेल डॉट यू बार इज नॉट इक्वल टू, यही से क्लियर होगा आपको, दिस इज नॉट इक्वल टू डेल डॉट यू बार. ये अलग है, ये जो कैलकुलेट किया ये डेल डॉट यू बार है. दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, ये आपका यू बार डॉट डेल है. ठीक है. तो और इसके बाद आपको 5 पे ऑपरेट करना है. ठीक है. तो इसके आगे आपको 5 पे ऑपरेट करना है. सो कैसे लिखो अभी, एंड देन यू हैव टू ऑपरेट. जस्ट 1 मिनट, लेट मी इरेज फ्यू थिंग्स. या एंड फिर उसके ये जो क्वांटिटी आपकी थी, या आपकी कौन सी क्वांटिटी है, दिस इज जस्ट यूर व्हाट इज दैट, दिस इज u bar डॉट डेल एंड देन यू हैव टू ऑपरेट दिस ऑन 5. बट 5 की वैल्यू क्या है, 5 की वैल्यू क्या है, x square y z. सो कैन यू टेल मी डायरेक्ट आंसर? सॉल्व करके बोल सकते हो आप मुझे, इट टेक सम टाइम एक्चुअली. सो x square y, ओके, dabba by dabba x ऑफ दिस, इसको आपको x से डिफरेंशिएट करना है. तो क्या मिलेगा, 2x y z प्लस नेक्स्ट y square x क्यूब, और dabba by dabba y से इसको डिफरेंशिएट करना है विच इज x square z. थर्ड आपका क्या था, -3 z square x square, एंड इसको आपको z से डिफरेंशिएट करना है विच इज x square y.
ये समझ में आ रहा है कि नहीं? टेल मी यस और नो, इज दिस क्लियर? ये जो मैंने लास्ट में लिखा, इज दिस क्लियर और नॉट? या फिर से एक्सप्लेन करना है? इज दिस क्लियर और नॉट, जो मैंने यहाँ पे लास्ट में परफॉर्म किया है? यस सर। ओके, क्या क्या समझ में आ रहा है? पहले तो मैंने ये डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट किया है, वो यहाँ पे है। उसके बाद बस मैंने 5 से अंदर मल्टीप्लाई किया है। जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तब मुझे एक बार x से डिफरेंशिएट करना होगा, एक बार y से करना होगा, एक बार z से करना होगा। नाउ जस्ट पुट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 1। किसी ने किया तो आप मुझे बोल सकते हो कि आंसर क्या है? जस्ट 6। Okay, you can verify this, and this is equal to 6. मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ऊपर जगह नहीं है। 6 at 1 2 1। ठीक है, इस पॉइंट पर आपको वो आंसर क्या दे रहा है? 6 दे रहा है। आप कैलकुलेट करो, ठीक है। एंड हाउ मच टाइम इज देयर? या side by side you can put your roll number in chat box for the attendance. I will, अरे बाप रे, ठीक है। We'll take few examples. ठीक है, ये आपको आगे कुछ है क्या? What is your next schedule? What is your next? कॉम्प्रेक्टिकल। ठीक है, okay, it's so we'll stop here. We'll stop here. Questions are there that I can complete in next lecture. ठीक है, टाइम जाएगा बट एटलीस्ट क्या होगा कि सारी वैरायटी आपकी कवर हो जाएगी। और इसके मतलब लेक्चर के बाद आपको निराली के क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं करने, सो इट्स जस्ट अ रिपीटेशन। ऑलरेडी मैं निराली के सारे क्वेश्चन ले रहा हूँ, सो यू हैव टू डायरेक्टली स्किप ऑल द निराली क्वेश्चंस। कोई भी क्वेश्चन पेंडिंग नहीं रहेगा। यू कैन ट्राई द अदर पीडीएफ्स जो मैंने आपसे शेयर किए लिंक में। लेक्चर अटेंड कर इजीली सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम निराली। एक बेसिक पार्ट आपका इजी हो जाएगा। कुछ डाउट्स है तो बोलो। हॅलो सर. हाँ सर यूटी साठी 2 यूटी पैकी कुठला तरी एक बेस्ट स्कोर सिलेक्ट करतात ना फायनल टर्म वर्क साठी? नहीं ना, एवरेज पकड़ते, अच्छा सर. एवरेज पकड़तात म्हणजे सगळ्या सब्जेक्टला। ओके सर.